सुप्रतिष्ठिताः सन्तु। की जय। राम जय राम जय जय राम। राम आज भी हमारे मन में बसे हैं। टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियापति राम, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन दिन को देख पा रहे हैं। महानुभावों, बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। Good evening and welcome to this special broadcast, day 3 of our special broadcast from Ayodhya. Today for this city, this temple town, it is going to be a historic day. Sadly, and I don't like saying this on a day when people should only be talking about the momentous occasion that this is. I don't think the coronavirus and its real impact is being understood on the Ghats, and that is slightly unfortunate. Despite the repeated announcements by the district administration, very few masks, very little social distancing, and I don't think even if Lord Ram were a human being, he would advise doing this in devotion. Even he would be wearing a mask. So that's one message that Ayodhya has to take, that this is a momentous occasion, but in the middle of a pandemic, something that the Prime Minister himself, look at what the Prime Minister did, repeatedly cleaned his hands after each and every visit. Look at what the Prime Minister did. In his speech, there was a very prominent mention of this. Why don't the people listen to this? Lord Ram is not going to save us with a pandemic. He eventually will, but as of this moment, we have to understand its importance. I want to start this program on this note because this is very, very important. Somehow we'll get drowned somewhere in all the festivity. But if you keep that aside, what a day for Ayodhya, what a day. This temple town is lit up for the past 3 to 4 days. It's looking beautiful, close to 1 lakh diyas, day after day after day on the Ghats, just make it look magnificent. It's a day which will be remembered in history as a day when finally, as many believers say, a sangharsh of over 500 years ended. But what is the future for Ayodhya going to be? The future for Hindu-Muslim harmony going to be? All that and much more we are going to talk about over the next 1 hour. We'll have exclusive newsmakers and also a lot of people right here. Also a new band. This is the second band I'll be introducing from Ayodhya. I didn't know that there are so many rock bands in Ayodhya. Thank you so much to all of you for joining us. But first, let's begin with an interaction with newsmaker number 1. UP Minister Siddharth Nath Singh is now with us. Mr. Singh, thank you so much for speaking to NDTV. My first question, according to you, how important and how big is this day? Well, you just said it. It's taken 500 years and we have come to this day. And certainly I would say 70 years of a long judicial battle that has gone through. And most importantly, I would say is the BJP manifesto always said through discussions or through judicial process. And I think the BJP has lived to it, which is very important. The country has accepted what the Supreme Court has given as a verdict.
So everybody has come forth. Lately I would say, but not initially when we were trying to come to agreements on Ram temple being built or Ram at the very site. But today, at least, all the political parties in India have also come about. So largely, it's I would say that it's a country's mood which is being reflected. So the rise of the Ram temple brings in the national unity in diversity, I would say. But yes, north, south, east, west, all the Indians sitting in various countries, the Hindus sitting in various countries, they all are rejoicing. So I think it's a momentous occasion for India, and I would say India moves ahead from today in a different direction. Now, Mr. Singh, following is a very important question, and I would want and I would expect an answer that would, of course, you believe in giving honest answers, but I would really expect that you answer this with utmost honesty. Who is directly responsible to ensure peace and harmony between communities from here on? I will not ask a question about the past. Since the morning, I've not been focusing on the past because that issue has been settled by the courts on the 9th of November. But in the future, who do you think has the ultimate responsibility to make sure that peace and tranquility remains, and Ayodhya is never known in the pages of history as a place of conflict? Well, I think that issue is over. That Ayodhya will remain an issue for conflict. And as a minister in the Yogi Ji's government, I am aware of what plans we have to build up Ayodhya into a pilgrim's place, and also at the same time to how to develop tourism. So I do see a lot of prosperity coming in Ayodhya, around Ayodhya and many other districts. So when the prosperity comes, a lot of things of past are forgotten. At the same time, people do look forward for not for building up issues or controversial issues where you can have these clashes coming in. So the communities do live in peace, and there are many stakeholders who can disturb, but I'm sure the majoritarianism opinion cutting across various religions and castes will always prevail now in India, and therefore I would say the various stakeholders who could disturb will be shown the way of peace and prosperity, and therefore the government and many political parties, they all will be coming together of looking forward once this issue has been already settled by the Supreme Court, and now the at Ram Janmabhoomi, the magnificent temple is now coming about. All right, Mr. Siddharth Nath Singh, appreciate you joining us right here on NDTV. So that was Siddharth Nath Singh, a UP minister, joining us. He was newsmaker number 1. Through the course of this program, we'll be speaking to the Kerala Governor, Arif Mohammed Khan, as well as Uma Bharti in an exclusive conversation where she opens up and tells us a lot about what to expect in the future, and how Ram is not just a god for the Hindus. He's India's god. He's India's deity. So that conversation will follow in just a short moment from now. But before we go any further, let me just speak to a few people gathered here. You've got a brand new rock band. I'm going to come to you in just a short moment from now. But what this means for Ayodhya, let me introduce my guest this evening. Maharaj ji, आपका शुभ नाम? सत्येंद्र दास वेदांती जी, वेदांती जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ महाराज कि अयोध्या, अभी आपने सुना, मैं उनसे बात कर रहा था सिद्धार्थ नाथ सिंह से। मेरा उनसे सवाल यही था कि जो बीत गई सो बात गई, वो इतिहास है। इतिहास के पन्ने हम टटोलते रहें, दुख होगा कुछ लोगों को, कुछ लोग विजयी महसूस करेंगे, कुछ पराजित महसूस करेंगे। आगे चल के कोई भी न विजयी महसूस करे न पराजित महसूस करे, या हर कोई विजयी महसूस करे, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? शांति बहाल रखने की जिम्मेदारी किसके ऊपर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का यही संदेश है, और आज भी उन्होंने यही संदेश दिया है कि शांति बनी रहे, सौहार्द की बात करें और सभी की विकास की बात करें।
तो चूंकि जब विकास की बात होगी, शांति की बात होगी, तो और विजय तो है ही, विजय कैसे नहीं है, विजय चूंकि विजय की लड़ाई लड़ करके हमने विजय को प्राप्त किया, जिसको नकारा कैसे जा सकता है। क्योंकि आपका जो सवाल है बिल्कुल मैं मानता हूं, ठीक है, लेकिन विजय जब है तो विजय को नकारा नहीं जा सकता। हमने कोर्ट से विजय प्राप्त की है। मोहन भागवत जी ने, अगर आपको याद हो वेदांती जी, मोहन भागवत जी ने तब भी ये बोला था कि इसको जय पराजय की तरह ना तोला जाए, ये उस समय की बात है। नहीं, मैं मोहन भागवत जी की बातों का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन यथार्थता को भुलाया नहीं जा सकता है। जो सत्यता है वो सत्यता है। कोर्ट से राम जन्मभूमि न्यास, जो भी राम जन्मभूमि की लड़ाई भगवान रामलला को विजय की प्राप्ति हुई है, इसे नकारा नहीं जा सकता। इसको जो भी हमारा जनमानस है, 125 करोड़ हिंदू जनमानस की जीत है, राम की जीत है, हमारे आदर्श की जीत है, इसे कोई नकार नहीं सकता है। ठीक है, ठीक है। आप कहाँ, आप हरियाणा से आए हैं, आप बता रहे थे। हरियाणा से आया हूँ मैं, राष्ट्रीय बजरंग सेना का अध्यक्ष हरियाणा अशोक राशिवाल। हरियाणा से आए हैं? हाँ जी, हरियाणा क्यों? से आया हूँ। मैं भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, यहाँ पर गोपाल दास जी ने न्योता भेजा था। गोपाल दास जी ने ही राष्ट्रीय बजरंग सेना की स्थापना की है। अब राम मंदिर बना उसी टाइम पर, आज ही स्थापना इकट्ठे करे हैं लोग। और एक भव्य हम गाय, अब मुद्दा होगा गाय माता का, अभी कतई सहन नहीं किया जाएगा कि भारत देश के अंदर गाय के हो रहा है अत्याचार के ऊपर हम एक कानून बनवाएंगे। हम सरकार से मांग करेंगे, केंद्र सरकार से करेंगे। राष्ट्रीय बजरंग सेना, पूरे देश की बजरंग सेना इकट्ठी होकर गाय माता के ऊपर, एक पूरे देश के ऊपर एक संगठन पूरा मजबूत करके सरकार से। बस वो बात सही है, लेकिन गैया माँ के नाम पर कोई मारा ना जाए, कोई पीटा ना जाए, इस चीज का भी आश्वासन देंगे। हम राष्ट्रीय बजरंग सेना के अध्यक्ष हरियाणा से मैं, आप जानते हैं मैं किस संदर्भ में बात कर रहा हूँ। हरियाणा वासियों की तरफ से मैं विश्वास दिलाता हूँ, कोई भी बगैर नाजायज कोई काम नहीं होगा, कोई किसी को बगैर नाजायज छेदा नहीं जाएगा। अगर गाय माता के साथ कतई कोई हरकत हुई तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राम मंदिर बन गया, दूसरा मुद्दा यही है कि हमारी गाय माता सुरक्षित रहे। लेकिन कानून अपने हाथ में भी नहीं लिया जाएगा। हम बजरंग सेना कानून हाथ में बिल्कुल। जी बताइए वेदांत। देखिए, किसी भी तरह का कानून अपना काम कर रहा है, और मैं जो भी इस तरह के जो कानून को लोग हाथ में लेकर के चलते हैं, कभी भी, चूंकि हमारा कानून न्यायपालिका बनी है, न्यायपालिका न्याय के लिए है, और ये साक्षात्कार है, अभी दिखाई दे रहा है भगवान श्री राम का। चूंकि न्यायपालिका पे हमको विश्वास था, और न्यायपालिका का जो विश्वास था, अटल था, अखंड था, आज उसका परिणाम सामने देखने को मिलता है। आज वह दृश्य जो अविरल दिखाई देता है, ये न्यायपालिका की देन है, और न्यायपालिका के द्वारा आज जो हम लोगों को विजय की प्राप्ति हुई है, इससे हम सबको सीख लेने की जरूरत है कि न्यायपालिका पे हमको पूर्ण विश्वास और भरोसा रहेगा तो निश्चित रूप से हमारी न्यायपालिका कभी किसी भी को प्रताड़ित नहीं होने देगी, और हम लोगों का जो भारत अखंड है, ये अखंडता की ओर रहेगा। चूंकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और मर्यादा एक सवाल मेरा था, आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में, पहले वो हमेशा जय श्री राम बोलते थे, आज उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में बोला जय सिया राम। मैं खुद अयोध्या वासी हूँ, और मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा, और इसलिए अच्छा लगा क्योंकि यहाँ स्थानीय लोग ऐसे ही भगवान राम को याद रखते हैं। सीता का नाम पहले, श्री राम नहीं है यहाँ पर, हालांकि उसमें भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि दोनों में किसी भी तरह का अंतर नहीं है, लेकिन हमारी ये लोग मूल बोल भाषा है जय सिया राम की। भगवती सीता जब तक, क्योंकि भगवती सीता के बगैर राम अधूरे हैं, इसलिए भगवती सीता का पहले उन्होंने स्मरण किया, और भगवान श्री राम का, जय श्री राम का उद्घोष, और बड़े उत्साह से उन्होंने दूसरी बार भी ये कहा अभी थोड़ा हल्का है, कम से कम ऐसी आवाज होनी चाहिए कि यह आवाज विश्व में जाए। तो जय श्री राम का नारा उन्होंने लगवाया, और भगवती सीता का भी, क्योंकि भगवती सीता जब तक हमारी आराध्या है, भगवती सीता। इस बातचीत में क्योंकि हम सीता की बात कर रहे हैं, तो महिलाओं को भी एक स्थान दिया जाए। आप आइए, आपका शुभ नाम, आप कहाँ से आई हैं? व्हाट इज योर नेम? आशा हसानी, माई सेल्फ आशा हसानी। मैं यहाँ फैजाबाद अयोध्या, जो कि अब हो गया है, वहाँ से बिलोंग करते हैं, और हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की आज्ञा के अनुसार, हम अपने प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी की आज्ञा के अनुसार इस उत्सव को बहुत ही मर्यादित तरीके से मना रहे हैं, इस खुशी को बहुत ही मर्यादित तरीके से मना रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है, और हमें सबकी भावनाओं का भी ध्यान रखना है कि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुँचे। लेकिन ये उत्सव हमारे लिए
500 साल बाद हम लोगों को ये क्षण प्राप्त हुआ है। बहुत कुर्बानियां हुई है। मेरे पिताजी ने स्वयं इसके लिए बहुत अपना जीवन दान दे दिया, अपना जीवन पूरा दे दिया मेरे पिताजी ने। और हम लोगों ने बचपन से यहाँ पे छोटे से हम लोगों ने कार सेवकों के लिए इतना खाना बनाया है। बचपन से हम लोगों ने यहाँ पे कार सेवा की है आकर के। आज हम लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है। तो इसलिए हम लोग लेकिन अपने प्रधानमंत्री की आज्ञा के अनुसार बहुत ही संयम से और बहुत ही मर्यादित तरीके से हम ये उत्सव मना रहे हैं। और लेकिन एक बार हम उद्घोष करना चाहते हैं। मेरे साथ सब लोग बोले जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। I guess that is the sentiment that we were talking about just a short while ago. Shri Ram, many people often saw that as a political slogan. Siya Ram was the way Ayodhya and Faizabad remembers its Ram. So is this, when the Prime Minister says Jai Siya Ram, is this an acknowledgement that we are returning back to the Ram that we knew he was? Are we returning back to that Ram and not a political Ram that has often been criticized? All right, thank you so much. आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाग लेने के लिए। हमारे साथ बंगाल से भी कुछ लोग, you have come from Bengal, have you? बताइए अपने बारे में। जी मैं जितेंद्र जी आर्य ओम बंगाल श्री श्याम मंदिर आलम बाजार से आया हूँ। मैंने बेलूर मठ, दक्षिणेश्वर काली और काली घाट का मिट्टी और जल लेके आया हूँ। मैं 90-92 में अच्छा आप जल लेके आए हैं, वो यहाँ पर लेकर के आया हूँ। बेलूर मठ जहाँ के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा जाते रहते हैं, वो स्वामी विवेकानंद की धरती है, वो रामकृष्ण परमहंस की धरती है, वो माँ शारदा की धरती है। उस धरती से मैंने एक प्रण लिया था 90-92 में कि जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा तभी मैं अयोध्या पर कदम रखूंगा। श्री नरेंद्र मोदी जी का भी एक प्रण था कि वो जब एक सारथी के रूप में लाडली आडवाणी जी के साथ में रथ यात्रा पर आए निकले थे, उसके बाद में आज वो इस धरती पर कदम रखे हैं। और मैंने भी उसी तरह से एक प्रण लिया था कि जब मंदिर निर्माण का काम शुरू होगा तभी मैं आऊंगा। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आई वुड नाउ लाइक टू इफ यू कुड जस्ट डिस्पर्स प्लीज। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों सबका। आप थोड़ा इधर हो जाएं, आप प्लीज थोड़ा इधर हो जाएं, मुझे रॉक बैंड के पास जाना। थोड़ा सा आप उधर हो जाइए प्लीज, आप लोग प्लीज थोड़ा, हाँ थोड़ा और उधर हो जाइए प्लीज, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग बनानी पड़ेगी। हाँ ऑल राइट, सो 3 days back we got you a rock band from Ayodhya. Here's another. I didn't know that Ayodhya has so many rock bands. So let's just know what is the name of this band. क्या नाम है आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्ष गुप्ता है और ये मेरा बैंड है। मेरे बैंड का नाम द इंडी फ्यूजन बैंड है। The what? द इंडी फ्यूजन। Indie Fusion Band. Okay, so what are you going to sing for us? चौक पुराओ गाएंगे। आज मेरे राम घर आए हैं। चलिए हो जाए। I'll keep the microphone right here. So we've got Sunil Bharala as well as Pragya Tiwari also with us. I would request the two of you to listen to the sights and sounds of Ayodhya. Right. Sure, please go ahead. मंगल गाओरी धरती अंबर सजाओरी उतरेगी आज मेरे राम की सवारी हर कोई कारण लाओरी मोहे काला टीका लगाओरी उनकी छब से देखूं मैं तो प्यारी लक्ष्मी जीवारा नजर उतारो आज मेरे राम घर आए हैं आज मेरे राम घर आए हैं रंगों से रंग मिले नए नए ढंग खिले खुशियाँ जुदार मेरे डाले डेरा पीहू पीहू पपीहा रटे कुहू कुहू कोयल जपे आंगन
Indie Fusion Band, ladies and gentlemen. And by the way, come on, आइए. मास्क लगाइए पहले. By the way, I want to tell all our viewers, joining us right now is Narendra Modi. Don't be surprised. Ayodhya's very own Narendra Modi is gifted with a talent, right? क्या बताना चाहेंगे आप हमें? बताइए, कुछ हो जाए. मैं मोदी जी की मिमिक्री करता हूं, तो मोदी जी की आवाज में ही बोलना चाहूंगा. हाँ, बताइए. नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी को पता है, अयोध्या के पावन धरती पर हमें आने का आज जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता. न मुझे किसी ने बुलाया है, न मैं यहाँ पर आया हूँ. अयोध्या के पावन धरती पर आने का जो सौभाग्य मिला है, मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता. बहुत बहुत धन्यवाद. भारत माता की, भारत माता की. और हम हैं लालू प्रसाद यादव. हम अपने राबड़ी देवी को अयोध्या से चुनाव लड़ाऊंगा. इसी बहाने हम प्रभु श्री राम का दर्शन करूंगा. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. देखिए, मैं अखिलेश यादव भी बन सकता हूँ और आप सभी से कहना चाहता हूँ, आपको विकास देखना है तो आप उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जाके विकास देखिए. आपको वहाँ भी विकास नहीं दिखता है तो आप अपने बेटे का नाम ही विकास रख लीजिए. फिर तो आपके अपने आंगन में ही विकास दिखेगा. अच्छा, ऐसा है, कुछ कल के लिए भी छोड़िए. कोई है बचा हुआ? अरे सर जी, हम तो कल के लिए कुछ छोड़ते ही नहीं है. Thank you so much, Indie Fusion Band. All right, sights and sounds. Of course, a sense of celebration. Obviously, a sense of celebration. But my only concern is none of you are wearing a mask, and you are not in my good books, all of you. I'm telling you, I'm declaring this on national television. Thank you so much, though. It was a great honor and privilege to have heard your band. Thank you. प्रोवाइड करते तो एनडीटीवी की पूरी टीम को मैं थैंक यू कहना चाहता हूं कि इस महामारी के बीच भी आप लोग इतने अच्छे से न्यूज प्रोवाइड करते हैं, तो थैंक यू. मास्क पहन के रखना और सामाजिक दूरी. थैंक यू सो मच. सुनील भराला as well as Pragya Tiwari are also with us. आप आइए. And I've got a guest right here also with me. So what we are going to do is, it's time for a short break at this moment. We'll stop for a short break at this moment. When we come back, we'll speak to our guests who have been waiting for a while, and also some guests who are joining us right now. Our continuous coverage right here on NDTV. All right, Shubh Rasta, Pragya Tiwari as well as Sunil Bharala are now joining us via a live link, and I have with me Professor Ramnarayan Dwivedi also sitting right here. Dwivedi ji, मैं अभी आपके पास आता हूँ, एक सवाल ले लूँ. Shubh Rasta, I wanted to know from you, do you see or should we read some meaning behind the Prime Minister saying Jai Siya Ram instead of Jai Shri Ram? Because this has done wonders to the people here locally in Ayodhya, because that's how they know their Ram. Significance of Sita. Yes. Sanket, I come from... That is a cultural land where every woman, every girl is made to believe that she is also an incarnation of Sita. So for us, it's a very big day because, Sita left Ayodhya. All of us who are steeped in local, oral tradition, we all know that Sita left Ayodhya because the Lok did not value her as it should have. So it's a historic day, undoubtedly, but we should also remember that till the time Lok, not Shlok, when I say Shlok, I mean the Prime Minister, the Chief Minister, our Dharm Gurus, they have all, they've always been kind towards Sita. Ikshvaku Kul never banished Sita, Lok banished Sita. So by doing this, by saying Jai Siya Ram, I think our Prime Minister Narendra Modi has also given a clarion call to the Lok of India to accept Sita in her true glory and make her come back. In fact, I am too tempted to use a little bit of Hindi today, Sanket. Jab tak Sita maa
सरयू नदी में छठ का व्रत करते हुए अयोध्या के अखंड सौभाग्य की व्रती नहीं होंगी। राम जी के साथ जब तक सूर्यवंश के ये दोनों कुल के जो दोनों नायक और नायिका हैं, जब तक सरयू नदी दोबारा इनके दर्शन से और वो उनके दर्शन से तृप्त नहीं होंगे, तब तक संकेत जी मुझे लगता है कि ये जो विजय है वो विजय पूर्ण हम जैसे बिहार वासियों के लिए नहीं मानी जाएगी। वैसे आज मन बहुत खुश है, मन बहुत खुश है संकेत जी। और अगर आप मुझे 2 मिनट की और मोहलत दें तो जो आह्लाद है वो मैं थोड़ा सा कुछ गा के करना चाहती हूँ, अगर आपके पास समय हो तो। Okay, sure. Not much time, but please. Yes, 30 I can't say no to this then. Yeah. सियावर राम जी के टहल बजबई हम, अवधे में रहबई भजबई बिहने सांझ राम, यही अवधे में रहबई। सरजू के पूजी दिन माँ बितबई हम, अवधे में रहबई। वही बाट चलथिन सीताराम, यही अवधे में रहबई। घर ही में हमरा चारों धाम, यही अवधे में रहबई। Thank you, Sanket. Fantastic, Shubhrasta. Thank you so much. Thank you so much to put meaning into what the Prime Minister said. I hope people understand the importance of Sita, not just in Bihar, but also over here in Ayodhya. Pragya Tiwari is also with us, and so is Sunil Varala. Pragya, I want to know from you as an Ayodhya Vasi, the historic nature of this day, but at the same time, what should one expect in the future? Sanket, if you don't mind, can I just also say a couple of words on Ma Sita and the Prime Minister's Ahvan of Ma Sita? Only because I really value what Shubhrasta says and does, but I really want to tell her that there is a common notion कि सीता का तिरस्कार अयोध्या में हुआ था, ये common notion है, but I would like to say that that's not entirely true. Ayodhya has 6,000 gazetted temples, out of which 7 are the main big temples. And one of the prominent temples in Ayodhya is the Ram Sakhi temple, जहाँ पे सब स्त्री भाव से रहते हैं. वहाँ पे इनफैक्ट हनुमान भी स्त्री भाव से रहते हैं. उनका नाम चारुशीला है उस मंदिर में. और झुंझुनिया बाबा जो थे, जो वहाँ पूजा किया करते थे झुंझुनिया घाट में, वो सिंदूर पहन के, चूड़ी पहन के पूजा करते थे और उसे सीता का ससुराल माना जाता था. और आज भी राम को खाना खिलाने से पहले उनको गाली सुनाई जाती है वहां पे, क्योंकि वो उनका ससुराल माना जाता है. देन ऑफ कोर्स देयर इज द छोटी देव काली in Ayodhya, which is the Sita's full Devi temple. Sita's birth is celebrated in a huge manner in Rang Mahal. Then of course there's the Lakshman Kila, which is probably the only temple जहाँ पे सीता की प्रधानता राम से भी ज्यादा है. 1 साल की अवधि लगाकर वहां पर सीता की मूर्ति लाई गई थी मिथिला से डोली में रख के. And the great thing about this temple is that it still is a Sita temple and it is known for its classical and folk and Margi musical performances. Some of the greatest singers and performers in the world have performed there. So I would just like to say I could go on and on and on about Sita, but Sita किसी की भी मोहताज नहीं है. और खासकर सबसे खास बात यह है कि जब सीता से, according to folk tradition, जब सीता से पूछा गया था कि why did she want to marry Ram, she had said she wants to marry Ram because she wants to go to Ayodhya for Saryu. So Saryu is the biggest pratik there is of Sita in Ayodhya. And Ayodhya Vasis love her, and she's not tiraskrit there. That's all I want. Well, she's got a very special place, and there's no denying this fact. And today, I'm sure if there is a lot of meaning that one can read into this, then this is only good. But why was this done in the past? Let's know. द्विवेदी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आज प्रधानमंत्री ने जय सिया राम बोला. आपको लगता है कि जय श्री राम एक राजनीतिक नारा था और जय सिया राम वो है जिससे हम अयोध्या में राम को जानते हैं, या दोनों ही अपनी जगह सही? देखिए, जय सिया राम और जय श्री राम में
कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ये आत्मिक लगाव की कहा जाता है श्री राम में एक राजनीतिक नारा है भाजपा द्वारा दिया हुआ। देखिए, ये अलग अलग लोगों की धारणाएं हो सकती हैं। भगवान के नाम में कोई राजनीति नहीं है। भगवान के नाम में पुण्य होता है, चाहे वो अज्ञानता में बुलाया जाए चाहे अज्ञानता में बुलाया जाए। इस प्रकार की कहीं कोई बात नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने जो आज जय सिया राम कहा है, चूंकि मैं तो वहाँ साक्षी था भूमि पूजन का, तो ये आप जान लीजिए, मैं बहुत इस बात को तहे दिले से कह सकता हूँ कि जब इस तरह की कोई आवाज आती है जय सिया राम या सीताराम, तो कहीं ना कहीं से हृदय से उस ईश्वर के प्रति लगाव बोध कराता है, आस्था का प्रतीक है। इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं हो सकती है। राजनीति भगवान के नाम से बहुत लोग करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर आज की जो पूजा थी वो प्रधानमंत्री जी ने बहुत तहे दिल से और हृदय से आस्था के साथ जय सिया राम का उद्घोष किया है। मैं वहां पूजन में साक्षी था। द्विवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए। सुनील भराला इज ऑल्सो विद अस। भराला जी, अब आपसे भी मैं पूछ लूं, आपको लगता है कि अब जब ये नारा दे दिया है प्रधानमंत्री ने, तो एक विचार में अभी जैसे यहाँ पर भी जो नारे लग रहे हैं, आधे लोगों ने श्री बोला, आधों ने सिया बोला, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सिया बोल दिया, तो आपको लगता है कि ये एक फर्क अब धीरे धीरे दिखना जरूरी होगा? संकेत जी, क्योंकि सिर्फ नारा नहीं है। इस प्रकार से संकेत जी, आवाज आ रही है? जी बताइए। संकेत जी, देखिए किस दृष्टि से किसको देखना है। अगर भगवान के नारों की बात करते हैं तो हमारे नारे 1992 से नहीं, 89 और उससे भी पहले से ये नारे हमेशा लगते रहे। और नारों के जो आगाज होता है, जो नारों को सुर मिलाते हैं, जो कार्यकर्ता और कार सेवक जो बोलते थे, वो जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री परशुराम, जय श्री हनुमान, वो हमारी एक अपने सभी आराध्यों के बारे में श्री लगा करके बोलने की है। तो वो जिस समय कोई वाणी पर कोई बात आ गई है, अगर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वाणी पर जब वो नारा दे रहे थे, तो वो नारा देते हुए उत्साहित और इतने हर्षोल्लास थे और खुशी उनके अंदर थी। तो जय सिया राम, जय सीताराम और जय श्री राम, जय सिया राम, तो वो उनकी एक खुशी की आगाज था। भगवानों को सुशोभित करने के लिए उनकी खुशी, अपनी खुशी, और इस देश के 135 करोड़ देश के नागरिकों की जो खुशी वो देख रहे थे, उसमें वो बहुत ही मतलब हर्षोल्लास जो कहते हैं, यानी कि एक बहुत अति उत्साह जो था, और जो वो एक सपन देख रहे थे। सुनील भराला जी, इसमें बात ये हो रही है, जो तमाम लोगों ने, जो तमाम विश्लेषकों ने बोला है, वो ये है कि एक राम जी का एक उग्र रूप दिखाने की एक प्रयास हुआ था पिछले 3 दशकों में। वो इसलिए जरूरी था क्योंकि आंदोलन से वो तस्वीर मेल खाती थी, लेकिन अब जरूरत नहीं है क्योंकि आंदोलन खत्म हो गया है। तो अब वापस उनको फैमिली मैन वाली भूमिका में दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। आरोप ये है कि राम का आप समय अनुसार उपयोग कर रहे हैं। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने या भारत के प्रधानमंत्री जी ने कभी किसी भगवान श्री राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण जी हो, भगवान कोई से हमारे किसी का कोई उपयोग नहीं किया। हमारी श्रद्धा के आधार पर, अगर जहां आप संकेत जी उग्र रूप की बात कर रहे हैं, उग्र तो लक्ष्मण हुआ करते थे और उन्हीं को दिखाया भी गया, चाहे आपने पूरी रामायण में भी देखा हो, भी सीरियल चला है, पूरे देश और दुनिया देख रहा था और था भी। तो भगवान श्री राम तो बहुत ही सहज और नरम और विनम्र था, यानी कि ऐसे विनम्र थे कि जब मतलब सुग्रीव और बाली वाले में भी उन्होंने कहा, सुग्रीव को जब बाली का अंत हो गया तो उन्होंने कहा कि इस पर जाकर के उनको सह सम्मान, क्योंकि योद्धा थे, योद्धा का अंत हुआ है, वो भले एक अत्याचारी थे, लेकिन भगवान श्री राम की विनम्रता उससे झलकती है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात बोल रहा हूँ। भगवान राम जो है वो हमेशा से विनम्र थे। आरोप यही है कि उनको 89 के आसपास उग्र दिखाया, नीले रंग के हो गए एकदम से प्रभु राम, हाथ में धनुष बाण आ गया, लेकिन अब वो उग्र रूप की जरूरत नहीं है, ये है विश्लेषकों का कहना। अब इस पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। तो सुनील भराला, प्रज्ञा तिवारी एज वेल एज शुभ्रस्ता, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Let's now also introduce the Kerala Governor Arif Mohammad Khan, who joins us on this show. Mr. Khan, thank you so much for speaking to NDTV. My first question, how significant is this day, the 5th of August? It is indeed historic, and it is
very significant, very important in the sense that this problem was lingering for very, very long time, spanning over centuries. And now, finally, it has come to a peaceful conclusion. I feel that when there was a dispute, there are two parties to the dispute. Even when it went to the court, there were two parties to the dispute. And the judgment was given. That is, that has been accepted by everybody, and today the speech which Prime Minister has made is not the speech of one who has, not the speech of the side who has won the case. It is the speech which brings everybody together. Indian civilization has given us two concepts. One is Vijay. Vijay means victory. Victory where somebody wins and somebody loses. The other concept which Indian civilization is given is Jai Ho. Jai Ho means nobody is a loser, everybody is a winner, and everybody, there is no hatred, no animosity, no distance from anybody. So Prime Minister, I am so happy that the speech of the Prime Minister today was informed by that sentiment of Jai Ho, where he mentioned not only the Indians who hold Shri Ram in high esteem, but he mentioned about so many Buddhist countries, so many Muslim countries outside India who equally have great respect and regard for the person of Shri Ram. So with that spirit, we should move ahead. Now the time of dispute is over. We, instead of turning on each other, we need to turn to each other and create better understanding, fraternal feelings, brotherly feelings, to build a better India next question, Mr. Arif Mohammad Khan, in the future. So who is responsible for creating a better India, Mr. Arif Mohammad Khan? Because to be able to create a better understanding, there has to be an atmosphere. I would like to draw your attention to statements by the Babri Masjid Action Committee, by Asaduddin Owaisi, who posts pictures of the Babri Masjid even now and says Babri Zinda hai. Do you think that this is a sentiment which has been left unaddressed even post the verdict, even though the Supreme Court has announced its verdict? You know, I don't want to comment about people. I don't want even to mention the name. Why? Because he represents a party which was responsible for delaying the freedom of Hyderabad by more than 13 months. And those 13 months, look at the history, the kind of mayhem this party had created in Hyderabad. They forced the hands of the government to take police action there. And it was only after 13 months, through protracted negotiations, they did not let those negotiations succeed. They burned down the house of the Prime Minister of Hyderabad, Nawab Sahib Chhatari. They burned down the house of the constitutional advisor of the Nizam. So if they could delay, by their machinations, they could delay the freedom of Hyderabad by 13 months. What they do now, I do not want to comment upon that. Okay, Arif Mohammad Khan, we'll invite Asaduddin Owaisi to perhaps respond to what you have said. But thank you so much for joining us on this broadcast. And before we end day 3 of our broadcast right here from the banks of River Saryu at the Ram Ki Paidi, I would like to quickly play out this discussion that I had with senior BJP leader Uma Bharti just a short while ago. Listen in to what she had to say. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो मेरे मन में बहुत समय से है अयोध्यावासी होने के नाते। आज प्रधानमंत्री ने जय सिया राम का नारा दिया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से जब भी हमने नारे सुने हैं प्रभु राम के लिए तो वो जय श्री राम बोलते हैं। अब मैं जानता हूं इनमें ज्यादा भेद नहीं है, आप भी अपने आप को उमा श्री भारती बुलाती हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये स्थानीय लोगों की भावनाओं
का ध्यान रखते हुए बोला गया है, या अब ये एक नया नारा बनेगा भारतीय जनता पार्टी का, जय सिया राम? आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब एक नए भारत की शुरुआत होगी और उस नए भारत में नर और नारी में समानता होगी। तो जो श्री राम शब्द था, उसमें जो श्री शब्द था वो सीता जी का ही प्रतीक था, लेकिन सबकी समझ में नहीं आ पाता था श्री से, क्योंकि श्री राम में समा जाता था। तो सिया का नाम लेकर के उन्होंने आगे स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों का समान रूप से सम्मान हो उनका, और सभी लोगों को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार इस देश में मिले, ये बात उन्होंने एक रूप से प्रतिपादित की है। क्योंकि जो सिया राम शब्द है वो उसका संकीर्तन हनुमान जी को बहुत पसंद है, और हमारे प्रधानमंत्री जी पहले हनुमान जी को मत्था टेक करके आए थे। उमा भारती जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए आपको क्या लगता है आगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए, और इसकी पूरी जिम्मेदारी किसके पास हो? देखिए, मैं आज आपसे इतिहास पर सवाल नहीं पूछूंगा, जो बीत गई सो बात गई। आगे अच्छे भविष्य के लिए किसकी जिम्मेदारी है कि वो सफल और शांत हो अयोध्या के इर्द गिर्द? इसमें मैं 2-3 जो मुस्लिम कम्युनिटी के नेता हैं ना, ओबीसी टाइप के, और दूसरा है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड टाइप के जो उनके इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको मैं अपील करूंगी कि जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो हिंदू मुस्लिम ने बहुत एकात्मता के साथ उस निर्णय को स्वीकार किया, और भारत के प्रधानमंत्री ने उसका शुभारंभ किया। ये मक्का मदीना, जामा मस्जिद, दरगाह शरीफ या हाजी मलन के जैसा रिलीजियस इम्पोर्टेंस का स्थान नहीं था मुसलमानों के लिए। बाबर एक विदेशी हमलावर था, भारत में आया और मरा भी यहाँ नहीं, उसकी कब्र काबुल में है। इसलिए भारत के मुसलमानों के साथ उसका कोई सेंटिमेंटल कनेक्शन है नहीं, ये ज़बरदस्ती उसकी करते हैं कनेक्शन उसके साथ। इसलिए शांति और सद्भावना इस देश के मुसलमान के मन के अंदर है। उसने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बहुत आनंद के साथ, शांति के साथ में स्वीकार किया। मैं इन लोगों से अनुरोध करूंगी कि आप मुसलमानों की गरीबी, बेरोजगारी, उनका पिछड़ापन और उनकी अशिक्षा के लिए लड़ाई करिए। आप उनके अंदर तनाव पैदा करके, चिंताएं पैदा करके, उनको भड़का करके आप उनका बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो, क्योंकि उन्हें तो स्वीकार कर लिया और वो आपके भड़कावे में आएंगे भी नहीं। लेकिन आप भी ये खराब चेष्टा मत करो। आपकी भी कुछ जिम्मेवारी बनती है इस देश की मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कि वो लोग आराम से रहें, शांति से रहें, हिंदू भी आराम से रहें, वो भी आराम से रहें। आज की घटना के बाद और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ऐसी स्थितियां देश में बनाई जा सकती हैं कि ईद की सेवैयां हिंदू के घर में बने और दीपावली के दिए मुसलमान के घर में जलें, ऐसा भी माहौल बनाया जा सकता है। और इसलिए मैं इन लोगों से अपील करूंगी कि माहौल मत बिगाड़ो। नहीं, अब मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ। आज ही असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से एक बयान आया जिसमें उन्होंने एक पुरानी तस्वीर लगाई है बाबरी मस्जिद की और कहते हैं बाबरी जिंदा है। आपको लगता है जो मामला अदालतों ने सेटल कर दिया, अब यहाँ मंदिर बन रहा है, उसमें इस तरीके की बात करने से तनाव और बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। आप पक्का मानिए, आप देख लीजिएगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुसलमानों को इनकी असलियत समझ में आ गई। मुस्लिम परस्ती की राजनीति करने वाले नेता 10-10, 20-20 साल सरकार में रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का भी राज रहा और देश में अभी ही कांग्रेस का राज गया है 6 साल पहले। इनने मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया, उनके लिए रोटी और रोजगार के लिए। अब मुसलमान नौजवान और लड़के लड़कियां पढ़ने लिखने लगे हैं, उनकी समझ में आ गया है कि धर्म के नाम पे हमको भड़काया जाता है। और दूसरा, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि जो बाबर भारत के बाहर से आया, मरा भी वहीं, उसकी कब्र भी भारत में नहीं है, उसकी याद की बनी हुई कोई चीज़ के पीछे पूरे देश का मुसलमान कैसे जुड़ जाएगा उसके साथ में। और जबकि हिंदुओं के लिए एक महत्व का स्थान था। और इसलिए आज के बाद से इस देश में शांति और अमन चैन रहेगा। इनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बोलने की कोशिश करेंगे तो इनका अस्तित्व मुसलमान खुद मिटा देंगे। जब रिएक्ट नहीं करेंगे तो इन चीज़ों का वजूद ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ये कह रहे हैं कि वो हिंदुओं को अपीस करने के लिए दिया गया। ये गलत बात है। इसका मतलब आप इस देश के संविधान और कानून को नहीं मानते। जी, लेकिन इससे जुड़े 2-1 सवाल ये हैं कि अदालत ने भले ही ये फैसला टाइटल सूट पे फैसला दे दिया हो, लेकिन जिस तरीके से बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी वो आपराधिक मामला अभी भी चल रहा है। तो आपको लगता है कि इस चीज को
नहीं भूलना चाहिए, आपने बहुत क्योंकि अच्छा आज जिस सवाल तरीके किया। का एक फंक्शन हुआ जी, इट्स ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो आपने जी, पूछा बताइए उमा जी। कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया तो हाँ, तो उन्होंने कहा कि वहाँ जो सबूत मिले हैं, जो ऐतिहासिक सबूत मिले हैं, जो पुरातात्विक सबूत मिले हैं, मंदिर के नीचे मंदिर के होने के सारे प्रमाण मिले हैं, इसलिए ये मंदिर के निर्माण का रास्ता खोलता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उस दिन 6 दिसंबर को क्या इसमें कोई साजिश थी, क्या ये साजिश के अंतर्गत गिराया गया, वो एक अलग विषय है। और वो जो एक अलग विषय है उसमें जिन लोगों पर ट्रायल चल रहे हैं उन पर चलना चाहिए, और इसलिए मुझ पर ट्रायल चल रहा है, अडवाणी जी पर ट्रायल चल रहा है, और हमें माननीय CBI की अदालत ने बुलाया था, वहाँ जा कर के हमने अपना पक्ष भी रखा है। और इसलिए बिल्कुल मैं इस बात को मानती हूँ, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल पक्षपात नहीं किया, बिल्कुल निष्पक्ष निर्णय सुनाया है। हाँ, अगर वो हमारे ट्रायल वापस कर देते तो माना जाता कि उन्होंने पक्षपात किया है, उन्होंने नहीं किया है, और हमें CBI की कोर्ट ने हमारी बात रखने का मौका दिया, हम अपनी बात अब रखेंगे, वहाँ पर रख चुके हैं, मैं तो रख चुकी है अपनी बात। मैं बस ये आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरा आखिरी सवाल, आपको लगता है कि जो तमाम आरोप लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक न्यायिक जीत को एक राजनीतिक जीत की तरह प्रस्तुत किया है अयोध्या में, इस आरोप का आप जवाब कैसे देंगे? ये तो अदालत से मिली जीत है, राजनीतिक जीत नहीं है। बिल्कुल नहीं देने की जरूरत है। भारत का प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री होता है, वो सिर्फ पॉलिटिकल हेड नहीं होता, वो इस देश की गवर्नमेंट का हेड होता है। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने ही सोमनाथ के मंदिर की शुरुआत करी थी। दूसरी बात, मैंने जब कहा था कि मैं सरयू के सामने करूंगी, उसका कारण था मैं चिंतित थी, तो सही में आज वो हुआ कि शिलान्यास स्थली पर प्रधानमंत्री बहुत सीमित लोगों के साथ थे, और वो मंच पर आए और अंत में उन्होंने सबको संबोधित किया, साधु संतों को। और इसलिए ये सारी बातें ही बिल्कुल बेमानी हो जाती हैं जब हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री हैं और वो एक आस्थावान व्यक्ति हैं, लेकिन साथ में वो भारत के प्रधानमंत्री भी हैं। और आज जो उनका उद्बोधन हुआ, उस उद्बोधन में उन्होंने सबका सम्मान किया, उनने अजमेर का भी जिक्र किया है आज के उद्बोधन में, उन्होंने मलेशिया और कंबोडिया का भी जिक्र किया है आज के उद्बोधन में, और उन्होंने जिस तरीके से राम के नाम की महिमा बताई कि वो सर्व धर्मों में स्वीकृत एक ऐसा नाम का चरित्र है जो जिसका सभी लोग सम्मान करते हैं, और अयोध्या का भी सभी लोग सम्मान करते हैं। आज तो राष्ट्र की एकात्मता का संदेश दिया है। और आज एक अच्छी बात ये हुई कि मेरे को मन में था कि मैं सरयू के किनारे रहूंगी, लेकिन आज मुझे एक पहली बार एक बात कही गई कि आपको अयोध्या में अपना अहंकार लग रहा है क्या, कि आपने कह दिया कि सरयू के किनारे रहना है तो मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। मैंने कहा नहीं, मैं रामलला के लिए अहंकार त्यागती हूँ और मैं वहाँ पहुँचूंगी, नहीं तो मेरे मन में था कि मैं सरयू के किनारे पर रहूँगी उस समय पर। इसलिए हम सब रामलला में पूरी तरह से समाहित हैं, हमारे मन में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। आज के बाद मंदिर के निर्माण के साथ एक शुरुआत हुई है सद्भावनापूर्ण राष्ट्र की, सब लोग शांति से रहेंगे। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ असदुद्दीन ओवैसी को कहूँगी, तुम्हारे अंदर लड़ाई करने की क्षमता है तो मुसलमानों की गरीबी, उनकी बेरोजगारी और उनके पिछड़ेपन के लिए लड़ाई करो, कस करके लड़ाई करो, लेकिन उनको आग में झोंक करके, उनको परेशान करके, उनके अंदर बेचैनी पैदा करके तुम सबसे बड़े दुश्मन हो उनके, और हम हैं जो सबसे बड़े हितैषी हैं उनके। जी